in 2016, we felt that the time was right. Actually, e-commerce was booming up, and we said, okay, this is the right time. Let us start an automation company from India. इसी विचार के साथ एडवर्ब की शुरुआत हुई। एशियन पेंट्स के 4 पूर्व अधिकारियों ने 2016 में इसे शुरू किया था। आज एडवर्ब भारत की प्रमुख रोबोटिक्स और वेयरहाउस ऑटोमेशन सॉल्यूशन कंपनियों में एक है। ये अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सब्सिडियरी कंपनियों के जरिए 25 से ज्यादा देशों में 350 से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं दे रही है। कंपनी का रेवेन्यू भारत और विदेशी बाजार के बीच बराबर बटा हुआ है। इसके ऑटोमेशन सॉल्यूशन रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। In India, it is just a start. We are educating the customers how automation can make their processes more efficient, more productive, and also takes care of the reliability of the operation which they seek for their customers. So it is still an initial stage in India, and we believe that in the last 10 years we have grown. Of course we have grown. We are the largest company in India. We are one of the fastest growing company in robotic space today, not only in terms of revenue but also in terms of the number of robots that we have. But 10 years is a very small journey in a company's life, and we still are at a I would say at a stage where we now know what the potential is and how much we can grow. So we are at the inflection point. हालांकि वेयरहाउस अब कंपनी का इकलौता लक्ष्य नहीं है। एडवर्ब के वेयरहाउस सॉल्यूशंस के पोर्टफोलियो में मोबाइल रोबोट, सॉर्टिंग रोबोट, ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम, पिकिंग सिस्टम वगैरह शामिल हैं। कंपनी नेक्स्ट जनरेशन रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें ऐसे कोलैबोरेटिव रोबोट शामिल हैं जो आम लोगों के साथ सुरक्षित रूप से काम करते हैं। साथ ही क्वाड्रूपेड्स और ह्यूमैनॉइड्स भी हैं। संगीत कुमार के मुताबिक ये फिजिकल एआई के वैश्विक होड़ का अगला चरण है। Physical AI it has not reached the chat GPT moment yet, and therefore yes, there is time in the next 2 years it will reach, probably, or next 3 years. When it reaches, it will start an industry as global as car industry, as big as car industry. What Elon Musk is saying makes sense. It really makes sense, because robots will be there to assist you when you are old. Robot will be there to assist in doing daily chores at your home. Robots will be there in hospitals. Robots will be there in industries doing, and the productivity will increase. संगीत कुमार का मानना है कि जैसे जैसे रोबोट की काबिलियत बढ़ रही है, इंसान और रोबोट के साथ काम करने के दायरे भी बढ़ रहे हैं। बेशक अगले 2 दशकों में फिजिकल एआई इंडस्ट्री का रूप बदल दे, फिर भी नियंत्रण इंसानों के हाथों में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स में तेजी से हो रही तरक्की के साथ नियमों में भी बदलाव की जरूरत होगी। वे साइंस फिक्शन की डरावनी कहानियों को खारिज करते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे और उन पर हावी हो जाएंगे। संगीत कुमार का कहना है कि आने वाले समय में भी इंसान ही फैसले लेने की प्रक्रिया में अगुवा रहेंगे। So humans will always be in the loop, is my feeling. As far as physical AI is concerned, I am not very sure about the AI. And the first law of robotics, which is no robots can harm human beings, that was the first law which was ever written. And I think every company has to think about it. There has to be regulation which has to quickly catch up with what is happening in the robotics world, what is happening in the automation space.
But okay, for the next 20 years, I don't know beyond it. Next 20 years, I don't think there will be any robot which will be able to control human beings. एडवर्ब का लक्ष्य अगले दशक में दुनिया की टॉप 5 रोबोटिक्स कंपनियों में शुमार हो रहा है। संगीत कुमार के लिए ये आधुनिक दौर में कमजोर और ताकतवर के बीच उस लड़ाई के समान है जिसमें कमजोर शख्स अपनी बुद्धिमानी से ताकतवर को मात दे देता है। संगीत कुमार को पूरा भरोसा है कि भारतीय कंपनी वैश्विक स्तर पर रोबोटिक्स की दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे सकती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।